Hello guys, I am Hitesh Tripathi and I am your instructor by Newton School, and in this video, that is day 11 of this playlist, data structures and algorithms, we are going to learn what are some applications of a stack data structure. Okay, so till now what we have learned is we have learned sorting algorithms, searching algorithms, and we have just headed towards data structures. And first data structure we are learning is a stack. In previous video we have learned what are stack data structure and how we can implement it. Okay, and we have also coded it. Now we in this video we are going to learn what are some applications of a stack data structure. Okay, so obviously if we have learned something like some new data structure, so हमें उसकी applications भी पता होनी चाहिए, that's why. Okay, and we will also see one example problem in this video. So before starting today's video, let's see what Newton School is. So basically Newton School is an e-learning platform which provides you placement trainings. Okay, so they will train you for being a full stack developer. So firstly they will train you for 6 months, and not only this much, then after that they will also get you placed in these companies like ThoughtWorks, Topper, 7-Eleven, Rapido, Deloitte, and many more companies. Like they have tie-up with almost 300 companies of India. So firstly they will train you, they will teach you front-end development, back-end development, plus programming language, plus different core subjects. Okay, so they will prepare you as a full stack developer, and then they will get you referred in these companies. Okay, and to know more about it, you can just come to newtonschool.co and check their pay after placement program. Okay, so it is a great thing under which you don't need to pay even a single penny. Okay, yes, तुमने सही सुना है, you don't need to pay even a single penny until and unless you get placed in these companies. Okay, and minimum CTC that they are providing you is of 5 lakh, so it is also a good thing. So just come to newtonschool.co and check their pay after placement program. Now second thing, they have launched a new initiative, that is Launchpad. Okay, under which you can just start for free, like you can start learning for free. Just come to their website, go to Launchpad section and sign up for free and start learning. Just join any courses which are available for free, and you will get certificate after completion of that course, and you can also do quizzes, give contests, and everything is here. So they are providing you a complete platform. Just come to their website, that is newtonschool.co, and check their both programs, that is pay after placement program and Launchpad initiative. Okay, so one more thing, if you haven't checked this YouTube channel Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this channel. I'm posting one video every day so that we can complete our C++ and data structures and algorithms as soon as possible. Okay, so till now we have learned everything about C++, then we have learned STL in C++, and now we have already headed towards data structures and algorithms. So now let's go to our today's video, that is application of a stack. Okay, fine. So obviously till now we have learned a stack and everything about a stack, how we can implement it, and I have already told you that we can also use a stack as an STL. Okay, because stack is a pre-implemented DS or template and STL. Okay, fine. सो हम स्टैक को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, हमें अगर कहीं पे स्टैक यूज़ करना है तो हमें पूरा का पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है. वी कैन यूज़ इट डायरेक्टली एंड वी हैव सम फंक्शंस ऑफ इट, तो हम उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बिकॉज इट इज़ प्री इम्प्लीमेंटेड इन स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी. नाउ हियर आर सम डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ए स्टैक. ठीक है, फर्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ सिंबल्स. ओके, इसका हम अभी एक एग्जांपल प्रॉब्लम देखेंगे तो हमें बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा. ठीक है, मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. ठीक है, फाइन. नाउ सेकेंड इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स कन्वर्जन. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ स्टैक. ओके, सो इसमें होता क्या है, जनरली हमारे जो ट्रीज होते हैं, ठीक है, ट्रीज, उन ट्रीज का
ट्रैवर्सल होता है. सपोज यू हैव ट्री डेटा स्ट्रक्चर एंड ट्री ऑलरेडी कम्स इन एडवांस डेटा स्ट्रक्चर. ठीक है, तो उनका कुछ ट्रैवर्सल मेथड्स होते हैं. लाइक यू हैव सम ट्री. ओके, अब तुम इस ट्री में कैसे ट्रैवर्स करोगे? लाइक रूट से नीचे आओगे, फिर नीचे आओगे, फिर ऐसे जाओगे, या फिर चाइल्ड से ऊपर जाओगे, ऐसे आओगे. ठीक है, तो इनका कुछ एक स्पेसिफिक ट्रैवर्सल एल्गोरिदम्स होती हैं. ठीक है, तो उनको पढ़ने के लिए जब हम वो पढ़ेंगे उस टाइम पे हम ये भी पढ़ेंगे कि इनफिक्स ट्रैवर्सल या फिर पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रैवर्सल. ओके, इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स. उन एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने में स्टार्क डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है. ठीक है, नाउ रीडू एंड अंडू फीचर्स एट मैनी प्लेसेस लाइक एडिटर्स एंड फोटोशॉप्स. तो जो भी आपके एप्लीकेशंस होते हैं, डिफरेंट एडिटर्स एंड फोटोशॉप्स, ठीक है, वो भी स्टैक का यूज करते हैं रीडू और अंडू फीचर्स में. ठीक है, कैसे? सपोज यू हैव डन सम चेंज इन योर डेटा. ओके, मैं फोटोशॉप की बात कर रहा हूँ. अगर आपने किया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आई एम टेलिंग यू इन इजी वे. ओके, तुमने कोई चेंज किया, सपोज दैट चेंज इज चेंज 1. ओके, तो तुमने इस चेंज 1 को अपने स्टैक में पुश कर दिया. ठीक है, फाइन. अब मान लो कि तुमने दूसरा चेंज किया, दैट इज चेंज 2, और तुमने उस चेंज को अपने इसमें पुश कर दिया, तो यहाँ पे आ गया चेंज 2. ठीक है, अब तुम्हें मान लो तुमने ये तो 2 चेंजेस कर दिए. ठीक, अब तुम्हें अंडू करने हैं ये चेंजेस. ठीक है, तो तुम्हारे चेंजेस अंडू किस ऑर्डर में होते हैं? जिस ऑर्डर में तुमने वो चेंजेस किए थे. ठीक है, तो तुम अंडू जैसे ही करोगे तो वो पॉइंटर जो होगा वो टॉप मोस्ट एलिमेंट में जाएगा और देखेगा कि तुम्हारा रिसेंट चेंज कौन सा है, दैट इज चेंज 2. वो इस चेंज को इन्वर्ट कर देगा. ठीक है, नेक्स्ट चेंज अगर तुमने फिर से एक अंडू की दबाई, दैट इज वो इस टाइप की कुछ होती है, तो वो सेकेंड चेंज देखेगा, सेकेंड टॉपेस्ट एलिमेंट. ओके, और वो उसको इन्वर्ट कर देगा. सो इन दिस वे अंडू एंड रीडू वर्क्स फाइन. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फीचर्स, ये भी तुम्हारे सेम कुछ अंडू और रीडू की तरह है. ठीक है, इन वेब ब्राउजर्स यूज्ड इन मेनी एल्गोरिथम्स लाइक टावर ऑफ हेनॉय. दिस इज हेनॉय. ओके, ट्री ट्रैवर्सल्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स, स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, हिस्टोग्राम प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो ये सारी की सारी एल्गोरिथम्स जब हम पढ़ेंगे हमें इनके बारे में समझ में आ जाएगा ऑलरेडी. ओके, सो राइट नाउ अभी हमने जितना पढ़ा है हम उतना ही देखते हुए चलेंगे. ठीक है, मैं ये सारी एल्गोरिथम्स डिस्कस करूंगा इन लेटर लेक्चर्स ऑफ दिस प्लेलिस्ट ओनली, सो डोंट वरी अबाउट इट. इन ग्राफ एल्गोरिथम्स लाइक टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट्स ऑब्वियसली. ठीक है, और ग्राफ एल्गोरिथम्स में भी स्टैक लाइक आप यूज कर सकते हैं डीएफएस में. फाइन. सो जब हम एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे लाइक ग्राफ्स, ट्रीज, ओके, सो उनमें ये जो हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं लाइक स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, इन सब का यूज करते हैं हम. ठीक है, सो फर्स्टली दैट्स व्हाई वी आर फर्स्टली लर्निंग लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड देन वी विल हेड टुवर्ड्स एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स. फाइन. नाउ वी आल्सो यूज इन मेमोरी मैनेजमेंट of any modern computer uses a stack as primary management for a running purpose. Okay, so in the same way like मैंने undo और redo features बताए, ऐसे ही मेमोरी मैनेजमेंट में भी यूज होता है स्टैक. ठीक है, now last is string reversal. so it is very intuitive, like you have some string हितेश, तुम्हें इसको रिवर्स करके लिखना है HSETIH. ओके, तो व्हाट यू विल डू इज तुम एक बार में स्टैक में सारे के सारे कैरेक्टर्स पुश कर दो HITESH. फिर जब तुम इनको टॉप से स्टैक को अपने खाली करना शुरू करोगे तो वो कैसे खाली होगा? HSETIH. ओके, तो इस तरह काफ़ी एप्लीकेशंस हो सकती हैं एंड सम ऑफ देम विच आर वेरी इंपॉर्टेंट आर लिस्टेड हेयर. ओके, नाउ after this let's see our today's problem, that is balancing of symbols. Okay, so this is problem statement. We have a expression like a string expression. Okay, and we have to write a program to examine whether the pairs and order of pairs are correct in expression or not. ठीक है, so directly हमें एक string expression दी गई है कुछ ऐसी. ठीक है, और हमें सिंपली चेक करना है कि जो हमारी string expression है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है. ठीक है, यू कैन से बैलेंस्ड है और नॉट. तो बैलेंस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन क्या होती है?
सपोज तुमने ये ओपन कहीं पे ब्रैकेट किया है तो वो ब्रैकेट वहीं पर क्लोज होना चाहिए, ओके, उस स्ट्रिंग में कहीं ना कहीं, ठीक है। अगर वो क्लोज नहीं हो रहा है इट मीन्स तुम्हारी स्ट्रिंग बैलेंस नहीं है। सपोज तुम्हारा एक कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं, ऐसा है, ठीक है, और एक ये ब्रैकेट ओपन किया तुमने, तो ये सारे के सारे ब्रैकेट अभी ओपन हो रहे हैं, ठीक है। कर्ली ब्रेस ओपन हुआ, ब्रैकेट ओपन हुआ, स्क्वायर ब्रैकेट ओपन हुआ, एक और स्क्वायर ब्रैकेट मैंने ओपन कर लिया, फाइन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रेस, देन स्क्वायर ब्रैकेट। तो अब ये क्या एक्सप्रेशन करेक्ट है? नहीं ना। वाई? बिकॉज जो भी ब्रैकेट हमने लास्टली ओपन किया था, ठीक है, लास्टली ओपन ब्रैकेट विल बी क्लोज्ड फर्स्ट, ओके। सो आई एम राइटिंग वन स्टेटमेंट, लास्टली ओपन ब्रैकेट will be closed first, okay, ओके। सो फर्स्ट प्रॉब्लम हमें ये चेक करनी है कि जो लास्टली ओपन ब्रैकेट है वो पहले क्लोज होगा, ठीक है। तो अगर ये लास्टली ओपन ब्रैकेट है तो ये ऑब्वियसली पहले क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे ये होना चाहिए, बट यहाँ पे ब्रैकेट था, दैट्स वाई इट इज इनकरेक्ट, फाइन। तो अगर मैं अब इसको करेक्ट करूँ तो ये क्या हो जाएगी, ये, ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है, फाइन। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ, लाइक यहाँ से मैं ये कम कर देता हूँ, ठीक है, फाइन। अब तुम सिंपली चेक करो कि तुमने ये लिया, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट लिया एक और स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये क्लोज क्लोज ब्रैकेट क्लोज, लेकिन तुम्हें एक कर्ली ब्रेसेस मिला, ठीक है, जिसका कहीं पे ओपन कर्ली ब्रेस है ही नहीं, ठीक है, दैट्स वाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, फाइन। So for every closed bracket, you must be having a open bracket. Okay, तुम इस वे में समझ सकते हो इसको. And for every open bracket, you must be having a closed bracket. Okay, so you can say second thing हमें जो चेक करनी है कि हमारा जो हर एक ओपन ब्रैकेट है उसके लिए एक क्लोज ब्रैकेट है या नहीं है, और हर एक जो क्लोज ब्रैकेट है उसके लिए एक ओपन ब्रैकेट है या नहीं है, ठीक है, फाइन। और यू कैन से कि तुम्हारी जो टोटल स्ट्रिंग लेंथ है वो डिविजिबल बाई 2 है या नहीं, ओके, तो तुम कुछ ऐसा भी सोच सकते हो, फाइन। सो हाउ कैन वी अप्रोच दिस प्रॉब्लम, लाइक हम स्टैक में देखते हैं कि हम स्टैक में क्या एक्सेस कर सकते हैं, लास्ट विजिटेड थिंग, ओके, एंड हमें फर्स्ट एप्लीकेशन और फर्स्ट कंडीशन चेक क्या करनी है, लास्ट ओपन ब्रैकेट। तो हम कुछ इस वे में स्टैक का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या करें, हम स्ट्रिंग में अपनी स्टार्टिंग से ट्रैवर्स करते हैं, ठीक है, और जैसे ही हमें कोई एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, लाइक सपोज लेट मी क्लियर दिस ऑल, ओके, फर्स्ट सपोज दिस इज अवर स्ट्रिंग, ठीक है, हम स्टार्टिंग से ट्रैवर्स किए, ठीक, और एक स्टैक बना लिया अपना, फाइन। स्टैक में जैसे ही हमें कोई एक ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगा, दैट इज दिस और दिस और दिस, हम अपने स्टैक में पुश कर देंगे, ठीक है। जैसे हमें एक स्क्वायर ब्रैकेट मिला, पुश कर दिया, फिर अगेन हमें एक ब्रैकेट मिला, हमने पुश कर दिया, ठीक है। और जैसे ही हमें एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, दैट इज दिस सपोज, ओके, देन ऑब्वियसली फॉर दिस वी आर गोइंग टू चेक कि हमारा लास्ट इनपुटेड ब्रैकेट कौन सा था दैट हमने स्टैक में प्लेस किया था। अगर वो सेम इसका ओपन ब्रैकेट होगा तब तो हम क्या करेंगे, सिंपली उसको अपने स्टैक से रिमूव कर देंगे, ओके। और अगर इस क्लोज ब्रैकेट के लिए कोई अगर ओपन ब्रैकेट है, ठीक है, क्योंकि हमारे स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट्स ही हैं, अगर इस ब्रैकेट के लिए अगर कर्ली ब्रेस है या फिर स्क्वायर ब्रैकेट है, तब हम वहाँ पे क्या प्रिंट कर देंगे, नॉट बैलेंस्ड, सिंपली, ओके, फाइन। तो हमने अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन चेक कर ली कि हम सिंपली हर क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए ओपनिंग ब्रैकेट चेक कर लेंगे कि वो सेम इसका है कि नहीं है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन चेक। सेकेंड इज हमें हर एक क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए ही चाहिए, ठीक है। सपोज मुझे एक क्लोजिंग ब्रैकेट मिला और मेरा ये स्टैक एम्प्टी है, यहाँ पे कोई ओपनिंग ब्रैकेट है ही नहीं उसके पहले, तो वहाँ पे नॉट बैलेंस्ड, ओके, सिंपल। तो अब कोड देखते हैं हम इसका और हमें और इजीली समझ में आ जाएगा, फाइन। तो मैं यहाँ पे आया, नो,
ओके फाइन। तो यहाँ पे आया, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन का कोड लिखा है, ठीक है। टोटल प्रोग्राम आपको अगर लिखना है तो आप अपने मन से ही, आपका असाइनमेंट है, आप जाओ न्यूटन स्कूल आईडी पे और लिखो। मैंने स्टैक एसटीएल की हेल्प से एक ले लिया जिसमें मैं ऑब्वियसली कैरेक्टर प्लेस कराऊंगा, और एक वेरिएबल कैरेक्टर ले लिया एक्स, ठीक है। अब मैंने अपनी स्ट्रिंग में ट्रैवर्स किया, फाइन, और मैंने चेक किया कि अगर मेरा जो करंट ब्रैकेट है वो ओपनिंग ब्रैकेट है, दैट इज अगर ओपनिंग ब्रैकेट है या ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट या फिर कर्ली ब्रेस, तो मैं उसको अपने स्टैक में पुश कर दूंगा और कंटिन्यू वापस लूप में आ जाऊंगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, ठीक है, तब मैं नीचे आऊंगा और चेक करूंगा कि अगर मेरा स्टैक एम्प्टी है, इट मीन्स कि मेरा, जब मैंने ये सिंपली चेक कर लिया है इतना, ये वाला इफ, ठीक है, इसका मतलब कि अब जो भी करंट वैल्यू है वो मेरी क्लोजिंग वैल्यू है, ठीक है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, ठीक, दैट इज दिस। तो अब मैं क्लोजिंग ब्रैकेट देखूंगा, अगर उस क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए स्टैक में कोई पहले से ब्रैकेट नहीं है ओपनिंग, तो रिटर्न फॉल्स वहां पे सिंपली, ठीक है। अदरवाइज मैंने एक स्विच केस बनाया है, ठीक है, इसकी जगह पे आप इफ एल्स भी यूज कर सकते हो सिंपली। फर्स्ट केस जब मेरा करंट ब्रैकेट जो है वो ये है, ठीक है, दैट इज सिंपल ब्रैकेट, तो मैं टॉप चेक करूंगा स्टैक का, ठीक है, और उसको निकाल दूंगा, और वहां से सिंपली चेक करूंगा कि अगर एक्स जो है वो कर्ली ब्रेस है और या फिर स्क्वायर ब्रेस है, तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज वहां पे स्विच केस ब्रेक कर दो, ठीक है, फाइन। और सिमिलरली फॉर अदर थिंग्स, लाइक अगर कर्ली क्लोज ब्रैकेट है या फिर स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट है, तो उसके लिए भी हमें चेक करना है सिंपली कि अगर वो स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट के लिए हमें नॉर्मल सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग मिला है या फिर कर्ली ओपन ब्रैकेट मिला है, तो रिटर्न फॉल्स, अदरवाइज सिंपली पॉप कर दो और कंटिन्यू कर जाओ, फाइन। So thank you guys for watching this video. If you haven't subscribed this channel, that is Code Kitchen Newton School, just go to YouTube and subscribe this channel, and again visit newtonschool.co and check their pay after placement program and launchpad initiative. Okay, under this they are providing you free courses also, and they are providing you placement training also. Okay, so you just need to come to newtonschool.co and explore their programs and get the most out of it. Thank you guys for watching this video. Like this video and subscribe this YouTube channel.